Okay, so first of all, you want to ask anything from the yesterday session? Anything? Akanksha, Priyanka, Rubina, Samit, Subramaniam. Or we are good to go? I don't have anything. So today we have to start the API, right? Yes or no, or something else? Yeah. Okay, so today I'm going to give you the example of API and then we'll tell you what is actually API. Okay, so I will give the example. Okay, so I will give you a scenario, then I will tell you how API is used currently. So let me take the example. I will take the example with Priyanka and let me take the example with Samya. So suppose Priyanka want to open a account in SBI. Okay, so what she will do? She will go to the SBI bank. He will submit all the KYC documents. Okay, and then she will be also going to submit the some initial amount like 5,000, 10,000 for opening account, and in return she will get a account number and a ATM number and ATM card. Is it okay? Is it okay? Is there any doubt? So now what will happen? One day Priyanka decided she will go to the ATM, SBI bank ATM, and she will withdraw some amount. So let's assume this is SBI ATM. This is SBI ATM, you can say, and I will also consider as a SBI ATM, or you can say consider as a application. Okay, it is SBI application because ATM itself is a, you can say, contains a software. So I assume it is a SBI ATM or SBI application. Now you know that in every ATM you will definitely you get a slot to insert a card. Okay, so what Priyanka will do, she will insert the card in the SBI ATM. Now, what thing will be asked by the ATM machine? What things? The main thing is PIN number. Yes or no? Yeah. Yeah. So what will happen when Priyanka will insert the card in the SBI ATM? It will ask for the PIN number. Okay. And when she will enter the PIN number, on the basis of PIN number, it will decide that it is a valid card or not. Right. But tell me where it is going to validate whether this card and this PIN number is valid or not. Where it is going to verify, where this information will be available. Anybody can tell me? Database. Yes, exactly. So actually, but in which database? SBI database. Yes or no? It is fact, because what is happening now, again I'm going to repeat the scenario. When Priyanka decided that she is going to open an account in the SBI bank, she will go to the SBI bank where she will submit all the documents like it's her identification, things like Aadhaar card, PAN card, address proof, and she's going to submit some initial amount to open an account. Okay, now all these details will be, you can say, saved in the SBI database, and then they will create a SBI account number and also provide a ATM card. Now she will get the ATM card. So all information about the Priyanka and her account is saved in the SBI data. So now when she is going to use the SBI ATM and entering the card, where it is going to verify? It is going to verify in the SBI DB. Is it okay? It means this from the SBI ATM or application, a request will go to the SBI DB. Okay, and in return it will get the response that it is a valid card, it is a valid PIN number or not. Yes or no? This is a valid scenario. Yes. Yeah. If anybody have any doubt, you can tell me.
So now it is very, very simple. You know that your detail is there. Every time when you get some money, you are going to deposit in the SBI DB. So definitely when you are asking some money from the SBI ATM, they are the same body. They are the same, you can say, related to the same structure, that SBI will interact with the SBI database, and she will get the details if the PIN number is valid. And if you are, suppose you are trying to withdraw 10,000 and your balance is 1 lakh. Again, same thing, it is where it is going to verify that your balance is more than your expected withdrawal amount. So everything it is going to validate in the SBI DB. So it will disperse the money, and you will get the money, and you will come out of the ATM happily. Now, the second scenario. One day, Priyanka goes to the ATM, and it was due to some reason it was not working. You can take the funny. I'm not going to make a fun for SBI, but usually what happens, we have seen that SBI ATM is out of work. It is not working. Sometime money is not available. So without thinking, usually people move to the adjacent building, move to the adjacent ATM. And it is very, very usual common things in the, you can see in everywhere in the world, that one ATM is there, and in the adjacent or within the area of 500 or 1 kilometer, you will get the another ATM. So same problem Priyanka faced, that she faced that ATM, SBI ATM was not working. So she goes to the other ATM. This ATM was PNB. This ATM was PNB ATM. Okay, this was PNB ATM, same PNB ATM. As I told you, I will also, in terms of technical, I will also tell you application. This is a PNB application, because we usually term, otherwise it is a technical. Same thing will be here in the ATM machine. Everything you can say, each and everything can be little bit different, but one thing will always be same. There will be a slot to insert the ATM. Now, without thinking any, without let me move it. Okay, without thinking, can we ATM? Oh, let me copy it as I've copied, so it will be a little bit disturbed. So to write this thing. ATM. So let me write it here. Let me write automatically. Let me write ATM here. Okay. Okay. When she inserted the card in the PNB ATM, again it is not saying that it is not a PNB ATM card. It is not going to tell you. It is not going to give you this message that it is not a SBI ATM card. Instead of that, it is going to ask you that please enter the PIN number. When you enter the PIN number, it will verify that it is a valid SBI card or not, it is a valid PIN number or not. And then it will verify that you are trying to withdraw the 10,000 amount, and it is less than the amount from your balance. So if everything is okay, it will disperse the money. Yes or no, Priyanka? Yes Yeah. or no, Priyanka? But now Yes. tell me, do you think it is a valid scenario? The reason is that your all details are available in the SBI database. Okay. And you are a customer of SBI bank. Every time, whenever you get some money, suppose you got some from somewhere, you got 10, 20,000 rupees in cash. So you will go to your own bank to submit that amount, right? You will not go to the PNB bank. But this time, when you are entering your card in the PNB ATM, it is validating everything, and it is verifying whatever it is verifying, from where it is verifying, don't know, but it is dispersing 10,000 rupees for you. So now tell me, how it is possible? It is only possible when it is going to verify these things to SBI DB. Without it is possible or not? Tell me. If this is happening, definitely it is going to verify all these things. Yes or no? Yeah. And if it is possible, then there is a you can say contradiction. What is the contradiction? Do you think that SBI bank, it is going to provide the direct access of their database to the another bank? Do you think?
No, it is not a valid scenario. No application. No, because SBI application, PNB application, you can treat as a two different organization. For example, do you think that Amazon application and Flipkart, they are going to provide their direct access of database to each other? No, because we know that actual things, actual data is saved in the database. Application is just like a interaction point. It is just like a UI. Actual data saved in database. So, but now this is a contradictory thing. You are able to get the money from the in PNB ATM. And if I will say it is not going to verify in the SBI database because SBI data will not provide the direct access, then it is a contradiction point. Yes or no? Yeah. Are you getting my point? Mm. Are you getting my point? That PNB, there is no relation between the PNB and SBI in terms of you, in terms of Priyanka, because she's a customer of SBI. So how it is possible? So in this case, the transaction is completing, the transaction is happening, the process is completing. But again, I'm saying that because SBI will not provide the direct access, so how it is happening? So this is a contradictory step. So how it is possible? So now this is only possible because in the both system, SBI and PNB, a third system exists. This is the third system. And what this third system do, whenever you insert a card, whenever Pinka insert a card in the PNB ATM, because it is not a PNB card, PNB ATM card, a request from the PNB ATM or application goes to this middle man. Okay, and this middleman actually send a request to the SBI database. So now anybody can tell me who is this middleman? Middleman is related to the which bank? Both the banks. No, actually middleman is related to the SBI bank. And you can say this is SBI representative. Actually, it is a SBI representative. Now something, assume in this such way that SBI has said when anybody from other banks, whenever my customer will try to, just listen the sentence carefully, whenever SBI said that whenever my customer will try to make a transaction from non-SBI ATMs, they, in that case, the application will interact with this representative, this third, so you can say the third software, they will interact with it. And in the response of this request, this software will get the details from the SBI. Now again it will get details back from the SBI to this middleman, and this middleman again send response to the PNB. So actually now PNB application is not directly accessing the database. Yes or no? Yeah. And it is a, because the representative, this middleman is a representative, or you can say part of the SBI. So security is also not breached because SBI person is, SBI application is only accessing the SBI DB. Yes or no? Yeah. Okay. Now the thing is that I understand that what is happening, definitely because this middleman is placed by the SBI, but now the question is why it is placed. Now why it is placed? You know that nowadays, because SBI or PNB or any bank, they is also doing the financial business. They are also doing the financial business. You know that they are known as financial institutions. आपको पता है कि आपकी अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखें तो ये बैंक भी होते हैं, दे आर आल्सो बिजनेस. जानते हो आप? You know that इसको बिजनेस ही बोलते हैं. They also go into the loss. वो भी लॉस में जाते हैं. और in some time, I don't think so you have account on that and it should be happen. लेकिन sometime if they are also going into the loss, they can also declare themselves बैंक करप्ट. जैसे बैंक करप्ट होते हैं, itself आपको क्या बोल सकते हैं, और आपका पूरा पैसा चला जाएगा. अगर आपको नहीं पता है, I'm not saying that this is a rarest condition about the you can say government banks, but this is also a business. ये भी business है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, what is happening here? Now think about that. If Priyanka open account in the SBI and several times she's facing a problem that, okay, sometimes SBI is not working. And sometimes what happen, SBI ATMs is not available in few places. But
some other ATMs are places in those places where Priyanka is trying to visit or going. Okay, in that case, actually SBI just trying to save their customer. Because what will happen that now just think about that, if SBI ATMs are giving problem, several problems, like sometime ATM is not working, sometime money is not available there, a few places SBI ATM is not available. So in that case, do you think that Priyanka will continue with the SBI bank? No. Yes or no, Priyanka? No. Yeah. But Priyanka know that if sometime I will not get the money from the SBI, I don't need to worry about that, because same ATM card I can use in the other bank's ATM. And you know that from few initial transaction, she do not need to pay any money for that. But yeah, after few transaction, like 2-3 transaction, there will be a charge. There will be charge for the transaction amount, like 20 rupees, 30 rupees. But in terms of facility, Priyanka is free to withdraw money in this you can in India from anywhere. Yes or no? Mhm. Yeah. So this is the reason that they provide the facility, this middleman. Okay, so that, and the same thing is happening. Same things happen that sometime. Now think about that, if PNB, if we take the example of, you can say, we can take the example of Soumya. We can take the example of Soumya. That suppose Soumya opened an account in the PNB. So this time all the details of the Soumya will be available in the PNB PNB. data. Now, but same thing happened that Soumya is also free to make a transaction from the other banks also. Yes or no? It is very common nowadays that if you are a customer of PNB, you can get the amount. I usually withdraw the amount from the SBI, from the ICI, from the SDFC, and I'm free. Nobody is going to ask anything. They simply ask that, oh, enter your card, just give me valid PIN number. And if you are expecting an amount which is less than your balance amount, they happily disperses from the ATM. You are getting my point? Yeah. Okay, so in this case, when PNB customer are able to get the money from the ATM, in that case, actually PNB will introduce a middleman. Are you getting my point? Yeah. So the person, this middleman will be for the PNB, and now the same thing will happen. Now I will tell you why middleman is now important in other aspect also. Now think about that. This middleman is only placed once. So whenever Priyanka is entering the card in PNB, the PNB application interacting with the middleman, and middleman is then interacting with the SBI database, and the transaction is there, and there is no security bliss. Now think about that. Some the PNB was also not working, and there is also a third bank ATM is there. I can take the example of, let me take the example of this one. I will take the example. Suppose it is anything you can say. Let me take the IC or SDFC. HDFC. Now same thing will happen when Priyanka will insert the card in the SDFC ATM. Now it is also non-SBI ATM. So in this case, what will happen? Again, a call will go to the, tell me where? Yeah. SBI middleman. And this middleman again do the same thing. Go to the SBI database. In return, he will get the response, and this response will go to the SBI application that, oh, this is a valid customer. Okay, PIN number is okay, and the balance is 10 lakhs, so you can disperse 10,000. Are you getting my mind? So this middleman is used to make an interaction with non-SBI application. Is it okay? Yeah. Now the thing is that it, in terms of you can see this picture, it is looking very, very easy, but there are so many challenges there. There are so many challenges. What is the first challenge? Just think about that. I told you SBI ATM is one application. SBI middleman is also a small application, just like a software. PNB ATM or application is also a application. Now think about that. When two application want to interact with each other, so here actually you will say the interaction is between the PNB application and the SBI application. You can consider the SBI database also part of SBI application. You can consider it is internally, it is also one thing, that SBI database and SBI. So you can think about that. PNB application is actually trying to interact with the SBI application. But tell me, applications means it is a software. Yes or no? Yeah. So you can think, suppose this SBI software, application software, whatever you will say, it is developed on
Java technology. Now this PNB is little bit, you can say, more advanced. So maybe it is developed on C#. Now tell me, you cannot, SBI cannot say that any bank which is going to be open in the future, they can control that which technology you should use for your development. No, they are different Yeah. organization. They are free to use. Yes or no? Yeah. And the reason is that maybe in the future, suppose JavaScript is very, very popular. And nowadays it is very, very popular. So SDFC is, you can say, develop their software on the JavaScript. Or you can say, let me take the example of Python. Okay, now first challenge, just think about that. I'm saying that this middleman is making a interaction between two applications. But now tell me, if two applications are developed on different programming language, do you think that it is easy to communicate? No, same thing. Now tell me, if you take the example, if Chinese or Japanese prime minister comes to India, and in India they want to communicate with our Indian prime minister, you know that there is a middleman. Translator. Yeah, and we use, yeah, exactly, clapping for you, we use the term translator, right? So what is the use of translator? Translator actually should have the capability to know both the language, so that they can convert the communication of one person to the another person in their language and vice versa. Yes or no? Yeah. Now same thing here. If SBI, suppose due to some reason, due to some effort, I can make it possible that, okay, with the help of this third man, a Java application can interact with the C# application without any effort, without any technology. But now thing is, it is not limited with the C#. But in case of SDFC, it is Python. Yes or no? Yeah. So now how a Java will interact with the Python SDFC application? So in short, the thing is that this middleman should have a capability to interact with any type of application which is developed on any technology. So the thing is that the communication the communication way should be irrespective of software technology, right? It should not depend on the technology. So what is the solution for that? And solution is that whenever this middleman is in, you can say, developed, it has a capability that it can transfer or communicate the data in the form of either XML or JSON. The communication is happening in the form of XML and JSON, and XML and JSON are actually not the programming language. XML और JSON programming language नहीं है. XML और JSON क्या है? They are known as a data storage language, है ना? इनको बोलते हैं data storage. Data storage language means whenever you want to store, we know that we can store the data in the database. हमको पता है हम data को database में store कर सकते हैं. But you know that we can store the data in our files also. But there is a specific format. Specific format क्या होता है? You have to use the XML format or you have to use the JSON format. है ना? तो ये आपके फॉर्मेट है. It is, they are respective of your Java language. Java language में भी अगर डेटा आपको ट्रांसफर करना है तो Java language with the help of some API, some code, we can convert the data in the XML format या JSON in JSON format. और C# भी वही करती है, क्योंकि again I told you XML and JSON, they are not programming, they are just the communication language. तो communication language तो कोई भी language क्या कर सकती है, किसी भी थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकती है. Is it okay? Yeah. ठीक है. तो सबसे पहले this is the main thing, that this middleman has a capability to, you can say, to transfer the data in the irrespective of any programming language, and this language, or you can say this language, is known as XML or JSON. तो पहला solution इसने achieve कर लिया. ठीक है. Okay, second thing is that there was some another problem also, that this middleman should have a capability of underlying operating system also. Now tell me one thing, I'm not saying that this is 100% true, but you know that in what happened, this SBI application or SBI web application, whenever you are developing any web application, it is deployed on a web server. Yes or no? Yes or no? आप जानते हो कि जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप होती है वो किस में होती है? इट इज डिप्लॉयड ऑन ए वेब सर्वर. वेब सर्वर का मतलब होता है, वेब सर्वर इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर लाइक यू कैन से JBoss, it can be IBM Westware, it is Apache Tomcat, and this is a software, and this software is again installed in a machine,
है ना, एक मशीन पे होता है। मशीन कैन बी Windows based, it can be Linux based, it can be Unix based, yes or no? So every time you can deploy your software in any web server, and web server can be available on any operating system, yes or no? आप विंडोज पे भी रख सकते हो। हम अब देखो, हम लोग यूजली किस पे काम करते हैं, यूजली वर्क ऑन द विंडोज, हम विंडोज की मशीन यूज करते हैं। बट यू नो दैट एक्चुअली जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होते हैं, दे यूजली डिप्लॉय इन द लिनक्स और यूनिक्स, क्योंकि दे आर मोर सिक्योर। जितने भी आपको विंडोज होते हैं यूआई बेस्ड, ये उतने सिक्योर नहीं होते हैं, आपको पता है ना, इसमें हैकिंग इजीली होती है, परफॉर्मेंस इसकी उतनी अच्छी नहीं। लेकिन जो यूनिक्स होते हैं, जो एक्चुअली दे आर डॉस बेस्ड, हम होते हैं ना ब्लैक स्क्रीन जो देखते थे, यूजली आपने देखा होगा इन योर मूवीज में देखा होगा, जब हैकर किसी सर्वर को हैक करते हैं, दे डोंट यूज द विंडोज, वो क्या हैक करते हैं, दे ऑलवेज यूज द दिस यूनिक्स एंड लिनक्स कमांड्स। हैव यू सीन दैट इन मूवीज? तो यहाँ पे another challenge, what was the another challenge, that suppose SBI application is deployed on the Windows machine, live scenario में it is not possible, Windows में नहीं रखते क्योंकि it is very very unsecure। Windows में हैक करना कोई भी चीज बहुत आसान होती है क्योंकि everything is in the form of, तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, I can consider it is Windows। In PNB the operating system is, you can take the example of Linux। So it is again a challenge, same thing, as two systems are working on different language, then it is tough to communicate. In the same way, when two softwares are deployed on different type of operating system rated machine, like one is deployed on Windows and other is deployed on Linux, so again this middleman should have the compatibility, you can say capability to make a communication irrespective of their operating system also. So again XML and JSON solve this problem, because again it doesn't matter it is a software is running on the Windows machine or software is running on the C# machine, the communication XML JSON is irrespective of this operating system also। Is it okay? Yeah। चलिए, अब थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है इस मिडलमैन की, कि इस मिडलमैन, दिस मिडलमैन इज एक्चुअली वर्किंग बिटवीन टू सिस्टम्स। ये जो मिडलमैन, इट इज वर्किंग बिटवीन टू सिस्टम। एसबीआई का एप्लीकेशन एक सिस्टम है, पीएनबी का एप्लीकेशन एक सिस्टम है, ये दो सिस्टम है, इनमें कोई भी यूजर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूजर मींस अ ह्यूमन बीइंग, यस और नो? आप जब एसबीआई की एप्लीकेशन में एंटर करते हो तो व्हाट यू डू, आप सिंपली ये करते हो ना, यू जस्ट ओपन एसबीआई, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एसबीआई वेबसाइट, आप एंटर करते हो तो यू जस्ट सिंपली कॉल एसबीआई। मैं केवल एसबीआई का लॉगिन खेलूंगा, लॉगिन करके नहीं दिखाऊंगा, सो आई विल शो यू, दिस इज एसबीआई। तो आप एसबीआई ऐसे जाते हो, देन यू क्लिक ऑन लॉगिन, ऐसे करते हो। तो आप यहाँ पे देखो कैसे कहा, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर लॉगिन एंड यू आर गोइंग टू मेक योर ट्रांजैक्शन। आप एसबीआई को ऐसे ओपन करते हो ब्राउजर में, सो यू आर ओपनिंग ए यूआई, है ना, एंड यू एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर गोइंग टू कंट्रोल इनटू लॉगिन, then you are entering username, password and enter, and then you make some transaction. So you have a UI for that because you are a human being, yes or no? And you are interacting with the SBI application. But think about that, when your PNB ATM, you can think about that, it's just like a PNB ATM is interacting with the SBI ATM. So these both bodies are a system, these both bodies are software, yes or no? Yeah। इसमें आपका तो इंटरफेयर है ही नहीं, क्योंकि आप देखो क्या है, आपका इंटरफेयर क्या होता है, प्रियंका विल एंटर द पिन नंबर ऑन द एसबीआई और एंटर द पिन नंबर इन द पीएनबी, वो अपना कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। बट व्हाट विल हैपन, एक्चुअली रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज टेकन केयर बिटवीन द पीएनबी एंड एसबीआई विद द हेल्प ऑफ दिस मिडलमैन, जिसके बारे में प्रियंका को पता भी नहीं होता है, यस और नो? क्योंकि प्रियंका डजंट केयर, उसने पिन नंबर डाला, शी जस्ट एंटर द अमाउंट व्हाटएवर शी वांट, she get the money and she will come out of the ATM। तो ये जो उसमें एक्चुअली द कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू सिस्टम्स हो रहा है ना पीएनबी और एसबीआई में, विद द हेल्प ऑफ दिस मिडलमैन, यस और नो? Yeah। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है, दो सिस्टम के बीच क्या कोई यूआई की जरूरत है? क्या एक सॉफ्टवेयर एक दूसरे सॉफ्टवेयर को यूआई से इंटरेक्ट करता है? दे ओनली सेंड द डेटा, यस और नो? Yeah। है ना? तो यहाँ पे थर्ड चीज होती है, ये जो सॉफ्टवेयर द मिडिल मैन इज, इट इज एक्चुअली नॉट डिपेंड ऑन एनी यूआई, ये किसी भी यूआई पे डिपेंड नहीं करता है। You're from your PNB application, you can send the data in the form XML, it takes the data in the form XML, it sends same data to the PNB application, they whatever their data want to provide, again SBI send the data in the form of, you can say XML JSON, and it just goes back to the PNB। तो यहाँ पे ये जो मिडिल मैन है, इस मिडिल मैन को कोई यूआई की जरूरत ही नहीं है, यस और नो? है ना? और इसका और बेनिफिट मैं बताता हूं क्या होता है। इस मिडलमैन के एक और बेनिफिट होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ
operating system, and it doesn't matter there is any UI or not, क्योंकि UI नहीं भी है तब भी the communication is there. तो एक और benefit बताता हूं आपको. Same software can be used to access from different type of machines also. Now think about that. There is a tablet. Now let me take the example. आपका एक example लेते हैं कि यहाँ पे एक tablet है. This is a tablet, or you can think about that any software, any hardware, any software which is stored in your car. Okay, and you can think about any device. Now I told you, because this application, this SBI middleman is irrespective of language, irrespective of operating system, right? So it can interact with any other type of device which can send the data. Yes or no? Yes or no? जब ये आप किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, तो कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने डेटा को केवल एक्सएमएल फॉर्मेट में भेज सके, वो क्या इस मिडलमैन से इंटरेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? है ना? बिल्कुल, it can do. So इसीलिए now the thing is that it means this middleman can be interact with any type of device. It is not restricted with laptop. It is not only restricted with your desktop. It is not restricted with mobile. Even from mobile, you can make a communication with this middleman. Yes or no? Because what is happening in the mobile? There is a UI, but behind the scene, if you can send a data, like suppose in the PI, take the example of, you can take the example of UPI. This is a very good example. What is happening? You just open your Paytm application, right? You enter the amount. Okay, you enter the amount to send to somebody. What happens? It goes to interact with the related middleman, and that is middleman is, it is going to interact and then it send the amount. Yes or no? आपको पता है जब आप पेटीएम करते हो तो यूपीआई इंटरेक्ट होता है, तो आप कैसे करते हो? सबसे पहले आप अपने बैंक से ही तो इंटरेक्ट करते हो. पेटीएम इज सम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड योर बैंक इज सम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो? आप अपने पेटीएम से उसको क्या करते हो? पेटीएम से यू आर लिंक्ड. यस और नो? लेकिन लिंक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके डेटाबेस का एक्सेस दिया. एवरी टाइम रिक्वेस्ट इज सेंट फ्रॉम योर पेटीएम अकाउंट टू योर configured बैंक अकाउंट. A request every time a request is goes. अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताओ कि every time what happens when you send a request, it validates everything. It validates, okay, you are interacted, so you are telling that I'm related to this, but every time it is going to check the balance in the account. Yes or no? क्या ऐसा होता है कि आपने एटीएम के, आप क्या करो, पेटीएम से अपने सपोज आईसीआई को वो कर दो, कॉन्फ़िगर कर दो. कॉन्फ़िगर मतलब यू कैन मेक अ लिंक कर दो, है ना? और आपके एसबीआई, आपके बैंक में आईसीआई में मान लो 10,000 रुपीज है एंड यू आर मेकिंग अ विथड्रॉ ऑफ 50,000. आपको लगता है पॉसिबल है? वो उस समय इट इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनी क्रेडेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ आईसीआई बैंक. आईसीआई बैंक कोई क्रेडेंशियल नहीं मानता है क्योंकि ओनली पेटीएम आस्क फॉर द क्रेडेंशियल. ठीक है, यूपीआई का पिन मांगेगा. बट टेल मी, क्या ऐसा होता है कि वहां पे 10,000 पड़े हैं और 50,000 you can transfer? No. It means it is going to verify the still required details in the ICI bank. Yes or no? So how it is possible? Because again, same thing. There is any type of device, but the communication first of all goes to this middleman. So these are the capability. When these type of capability are available in this software, this software is also actually known as, in the single word, as a web service or API. इसी को आप बोलते हो web service. Broad level में you call it web service, and in the specific you can say nowadays people call it API. इसी को क्या बोलते हैं? API. और इसी ने क्या कर दिया है? It made your life very very easy. आपकी लाइफ इजी क्यों बना दी है? आप अपने सेम अकाउंट को यू ऑपरेट फ्रॉम द डेस्कटॉप. देखो मैं करता हूं ना, मैंने अभी यहाँ एसबीआई को ओपन किया है, मैं यहाँ से भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ. एंड आई इंस्टॉल एपीके, और यू कैन से व्हाट यू से, हमने एक वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले. हमने एसबीआई की वहां से ऐप डाउनलोड कर ली एंड वी कैन मेक ए ट्रांजैक्शन फ्रॉम दैट आल्सो. यस और नो? यस. लेकिन ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एपीके जो भी हमने वहां पे हमने अपनी ऐप डाउनलोड की है, दैट इज जस्ट लाइक ए यूआई, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन इट इज एक्चुअली सेंडिंग ए रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ XML एंड JSON. XML और JSOन के फॉर्म में एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसमें डेटा जाता है, एंड एवरी टाइम द पर्पस इज टू इंटरेक्ट विद दिस मिडलमैन. ये मिडलमैन गया, इस मिडलमैन ने अपना काम किया, सेंडर. सो इससे कोई मतलब नहीं आपका कहां से आया.
यही रीजन है कि आपके, अब देखा होगा आपने नाउअडेज कि फॉर एग्जांपल आजकल कार्स में क्या होती है, स्मार्ट डिवाइसेस खुद की लगी हुई हैं। हैव यू सीन? है ना, स्मार्ट डिवाइसेस लगी, क्या करती हैं आपका, आपके घर में कैमरा लगा है, आपके आप कार में यू कैन सी द वीडियो ऑफ दैट, यस और नो? Yeah. ये सब डिवाइसेस जो इंटरेक्ट हो रही, और इन द फ्यूचर यू विल सी देयर इज अ कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो दैट इज कॉल्ड, व्हाट concept is that called, smart something like that, in which you can say people in the industry is planning to integrate every device of your house, they will be integrated with each other। मतलब क्या होगा कि आपने क्या किया, आप अपने घर के अंदर आपने डोर को ओपन किया, आपके डोर ओपन करते ही लाइट खुल जाएंगी, ठीक है, आपके फ्रिज बंद है वो खुल जाएंगे, आप आपका टीवी यू वांट टू स्टार्ट, आपका टीवी स्टार्ट, मींस योर डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, आप घर से, आई डोंट नो दिस ad is not now coming, but I can remind few years back there was a ad, in that ad Amitabh Bachchan was traveling in the car, and when he was about to reach to the house, he just switched on the AC from the house। Have you remind, can anybody remind this ad? किसी को याद है ये? चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे जानते क्या हो रहा है, एक्चुअली यू विल सी इन एवरी केस आपका डेटा क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। इफ योर डेटा कैन फ्लो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इजली, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कि वो डिवाइस बनी कैसे है, उसकी डिवाइस का आर्किटेक्चर क्या है, उस डिवाइस को लैंग्वेज कौन सी है, अगर इस रेस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग यू कैन मेक ए कम्युनिकेशन, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यू कैन इंटीग्रेट मल्टीपल डिवाइसेस, यस और नो? तो यहाँ Yes. पे ये जो थर्ड, जो मैंने बोला थर्ड बॉडी है जो आपके एसबीआई का मिडिल मैन है, इट इज एक्चुअली परफॉर्म, और उसमें क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सएमएल जेसन में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, एंड इट इज आल्सो बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द एक्सएमएल जेसन, सो इट डू नॉट नीड एनी यूआई। अगर आप यूआई बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, क्यों, if the data is coming from this middleman to your device and you from your device it is just accepting the data, तो आप अपने एंड पे तो उस डेटा का कुछ भी कर सकते हो, यस और नो? आपका जेसन का डेटा, एक्सएमएल का डेटा, इट इज कमिंग टू योर सॉफ्टवेयर, उसके बाद आप उस डेटा को फेच करके उसका यूआई तो बना ही सकते हो इफ यू वांट, यस और नो? आप अपने जो आप अपनी ऐप डाउनलोड करते हो उसमें क्या करते हो, जो डेटा आपका आता है उसके लिए आप क्या करते हो, एंड्रॉइड का जो होता है, एंड्रॉइड का जो होता है डेवलपमेंट, क्या होता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हो। आईओएस डेवलपमेंट क्या होता है, आईओएस के अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी उसमें यूआई की सपोर्ट करती है उसमें आप क्या करते हो, लेकिन डेटा कहां से आता है, डेटा इज ऑलवेज कम्स यूजिंग एपीआई। अगर डेटा एपीआई के थ्रू नहीं आता तो चैलेंज क्या होता, आपको हर डिवाइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता, यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन होता क्या है, यू हैव डेवलप्ड दिस मिडिलमैन वंस एंड इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो पूरी एप्लीकेशन होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर फॉर सर ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पूरी एप्लीकेशन ही इस एसबीआई पे डेवलप होती है, इस सॉफ्टवेयर पे डेवलप होती है, इस वेब सर्विस से डेवलप होती है। कैसे? आप खुद एक चीज देखो, अगर सपोज अ कम्युनिकेशन इज बिटवीन द एसबीआई एटीएम, एसबीआई एप्लीकेशन एंड डीबी, एसबीआई एप्लीकेशन और डीबी के बीच भी तो यही कम्युनिकेशन हो रहा है, it is going to verify yes or no? जब प्रियंका, when Priyanka will insert the card in the SBI ATM, okay, and it is going to check where it is going to verify, it is going to check verify in the SBI DB, तो ये इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है ना, yes or no? Yes. Yeah. हमें इसके लिए अलग से कोड लिखने की क्या जरूरत है, क्या जैसे as PNB is using to make interaction with the SBI with the help of this middleman, itself SBI भी तो कर सकता है, SBI भी क्या करे, अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजे, SBI की डेटाबेस से तो कनेक्ट है ही, तो इस कोड को they can use itself and they can use for others also, yes or no? Yes. तो कोड दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो उन्होंने नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग, अब हर एप्लीकेशन जानते हो क्या कर रही है, दे आर डेवलपिंग ओनली द यूआई। वो कह रही है जितना भी हमारा बिजनेस लॉजिक है, व्हाटएवर बिजनेस लॉजिक वी वांट टू अचीव, we have to implement in the form of API। कैसे? देखो सबसे बढ़िया, यहाँ पे एसबीआई ने कहा कि जब कोई बैलेंस पता करना चाहता है तो उसकी एक सर्विस बना दी, एक एपीआई बना दी, ठीक है, तो लेट मी चेक, गेट बैलेंस, केवल बैलेंस, आप अकाउंट नंबर उसमें दो, इट विल गिव यू द बैलेंस, गेट बैलेंस सर्विस। अब देखो इस बैलेंस सर्विस का यूज कहां जगह हो सकता है, व्हेन यू आर एक्सेसिंग योर इंटरनेट, इन यूजिंग योर इंटरनेट वेब एप्लीकेशन, अगर आप एसबीआई को, मैं यहां से करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, तो यहां से क्या आई कैन नॉट इंटीग्रेट विद इट, यस और नो?
मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जहां पे बैलेंस का ऑप्शन होगा, आई विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड from that you will only pass this thing. Yes or no? What you will say? What you will say? Where it is goes? Where it is? कहाँ गया? अरे मैंने बंद कर दिया. This one. Okay. हाँ. Now tell me. जब आपका यहाँ पे आता है तो आपने क्या किया? गेट बैलेंस सर्विस करते हो. आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो भी तो आपका कहाँ से निकालता है? बैलेंस कहाँ से निकालता है? डेटाबेस से. Yes or no? वेब ब्राउजर पे केवल क्या दिखाता है? It just shows you as a UI. Yes or no? हाँ जी. Yeah. तो आप देखो इस बैलेंस सर्विस को अगर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया होता इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आई कैन पुट इट एनीवेयर. मैं इसको कहीं पे भी रख सकता था. कैसे? आई कैन पुट इट एज ए मिडिलमैन एनीवेयर. मैं इसको एसबीआई की एप्लीकेशन से इंटीग्रेट ना करके इसको बाहर कहीं भी रख लेता. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इस बैलेंस सर्विस को अगर मैं इसी को उठा के एक ऐसे प्लेस पे रख दूं, एज ए वेब सर्विस रख दूं, तो क्या होगा? anybody who from any device want to get balance of their account, आप अपने बैलेंस का, आप अपने अकाउंट का बैलेंस यू वांट टू गेट इट, सपोज दिस इज योर टैबलेट, तो आप क्या करोगे? एज ए एपीआई जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, जो आप क्या बोलते हो, एप्स डाउनलोड करते हो एसबीआई की, वो क्या करेगी? वो इंटरेक्शन किससे करेगी? इससे. यस और नो? उसको केवल इससे इंटरेक्शन करना है और ये इंटरेक्शन तो कर ही रही है इससे. यस और नो? तो ऐसे क्या करते हैं, योर एप्लीकेशन इज एक्चुअली बिल्ड ऑन स्मॉल एपीआईज, और इन्हीं सारी स्मॉल एपीआई को अगर कंबाइन कर दो तो पूरा बिजनेस डोमेन बन जाएगा. यस और नो? जैसे बोलते हैं ना, बैलेंस ट्रांसफर सर्विस, ओके, अकाउंट ओपनिंग सर्विस, है ना, हर सर्विस, हर टाइप के बिजनेस लॉजिक के लिए वी डेवलप्ड अ कोड. इसमें से जो सर्विस, व्हाटएवर सर्विस यू थिंक दैट यू शुड प्रोवाइड टू द अदर एप्लीकेशंस, अदर बैंक, आप उसको उनको एक्सेस दे दो. जिनको नहीं देना उनको एक्सेस मत दो. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. तो ये आपका होता है यूज सबसे. तो ये आपका, दिस इज द बेस थिंग. जब भी कोई पूछे वेब सर्विस क्या है, अब आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, देन आई विल कम टू द डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन पे आता हूं, आपके सामने इंटरनेट से उठाऊंगा. ठीक है? अब आप देखना कि हाउ यू आर वेरी क्लोज. सारे पॉइंट जो मैंने बताए, यू विल सी व्हाट इज वेब सर्विस. और पीपल यूजुअली टॉक अबाउट एपीआई, तो आप एपीआई भी देखो. व्हाट इज एपीआई? और व्हाट इज वेब सर्विस लिखो पहले ज्यादा. व्हाट इज वेब सर्विस? चलिए कहीं पे वेब सर्विस डेफिनेशन में जाओ, पॉइंट पे आते. चलिए यहाँ पे आपको, जैसे आपको यहाँ दिखा होगा, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा जो चीजें मैंने बताई. First of all, just think about this one. A web service can be defined by the following ways. It is a client-server application or application component for communication. Client-server क्यों बोला? Client-server means definitely it will be happening between two systems, है ना? Two systems किसको बोलते हैं? एक होता है client, which is asking, which is sending a request, and server is which is sending the response in that request. है ना? तो क्लाइंट सर्वर का मतलब, कभी कभी ये कंफ्यूज कभी मत होना क्लाइंट सर्वर का. यू शुड नॉट बी कंफ्यूज दैट क्लाइंट सर्वर मतलब एक ब्राउजर हो गया और एक सर्वर. नहीं, क्लाइंट कैन बी एनीथिंग. हमारे वेब एप्लीकेशन के केस में, इन आवर वेब एप्लीकेशन, क्लाइंट इज ब्राउजर, राइट? लेकिन क्लाइंट कैन बी एनीथिंग, है ना? तो सबसे पहले इसने क्या बोला? इन केस ऑफ वेब सर्विस देयर शुड बी ए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन. डेफिनेटली जब तक एक रिक्वेस्ट करने वाला नहीं होगा और उसको सर्व करने वाला नहीं होगा, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है? दूसरा क्या पॉइंट है? Who is going to read the second point for me? Priyanka, you want to read? The method of communication between two devices over the network. अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है कि आप द कम्युनिकेशन कैन बी हैपनिंग फॉर टू डिवाइसेस. मैंने ये नहीं बोला अ ह्यूमन बीइंग एंड ए डिवाइस. कम्युनिकेशन इज बिटवीन हैपनिंग बिटवीन टू डिवाइसेस. जो भी इंटरनेट पे दो डिवाइसेस हैं, आपका कम्युनिकेशन उनके बीच पॉसिबल है. यस और नो? आपके इंटरफेयर की जरूरत ही नहीं है. आपने तो इंटरफेयर किया. फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो, आपको अगर लग रहा है एटीएम की मशीन में आपका इंटरेक्शन है, तो आपका इंटरेक्शन एक्चुअली डिवाइसेस के बीच थोड़ा है. आपने तो इंटरेक्ट किससे किया है? केवल पीएनबी की एटीएम से. यू हैव इंटरेक्टेड विद द पीएनबी मशीन. आपने कार्ड डाला. क्या आपको कभी रियलाइज भी हुआ? बहुत लोग को पता भी नहीं है कि मैंने कार्ड डाला
और ट्रांजेक्शन हो गया, वो कभी सोचते नहीं है। लेकिन आप सोचो, ये ट्रांजेक्शन तभी पॉसिबल हुआ व्हेन योर पीएनबी इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एसबीआई, यस और नो? अगर पीएनबी एसबीआई से इंटरेक्ट नहीं करेगी तो आपको पैसे क्यों देगी? हर बार पैसे आप जमा करते हो एसबीआई में और एटीएम से निकाल लेते हो पीएनबी के। तो सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल इसलिए, डेफिनेटली देयर इज सम यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीस टू यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना है। सेम टाइम कम्युनिकेशन रन टाइम पे कैसे पॉसिबल है? बिकॉज बोथ द डिवाइसेस आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड ओनली यूजिंग दिस वेब सर्विस कॉन्सेप्ट दे कैन इंटरेक्ट वो। तो सेकंड पॉइंट इज क्लियर? Okay, third point, it is a software system for the interoperable machine to machine communication. अब देखो थर्ड पॉइंट भी ये क्या कह रहा है, सिंपल सा, कि मैंने बोला है ना, ये जो मिडिल मैन होता है, इट इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर। जैसे आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर डेवलप क्या करते हो एप्लीकेशन में? आप कोड लिखते हो हर बिजनेस लॉजिक के लिए ना, डोमेन के अंदर। जैसे यू आर गोइंग टू क्रिएट अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर, विड्रॉ अमाउंट, इस सब के लिए क्या लिखते हो? बिजनेस लॉजिक इन द लैंग्वेज लिखते हो ना, है ना? आप जब एसबीआई की एप्लीकेशन खोलते हो, अगर एसबीआई किसी बैंक की एप्लीकेशन खोलो, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर बना है, इसमें जावा की लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है ना, कि जब आपको आपको यू वांट टू ट्रांसफर सम मनी, कैसे ट्रांसफर करता है? दैट कोड इज रिटन इन द जावा लैंग्वेज, और वो जावा लैंग्वेज किससे इंटरेक्ट करता है? आपके डेटाबेस से, यस और नो? ठीक है, ये आपका सी शार्प में लिखा। लेकिन वेब सर्विस में तो मैंने बोला ना कि द कोड इज नॉट, इट डजंट मैटर दैट कोड इज रिटन इन जावा, कोड इज रिटन इन सी शार्प, क्योंकि आपका कोड डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता। ओनली दिस एप्लीकेशन, दे इंटरेक्ट विद दिस एप्लीकेशन, वो इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं। और ये एप्लीकेशन का काम ही है कि इसका काम है, दे ओनली एक्सेप्ट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल एंड जेसन। आप एक्सएमएल और जेसन में इसको डेटा दो, ये उसी डेटा को प्रोवाइड करेगी दूसरे को, और जब आपको रिटर्न करेगी तो उसी फॉर्मेट, यानी इट ओनली एक्सेप्ट द डेटा एंड इट आल्सो सेंड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल जेसन। तो इसका कोई डिपेंड मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे करता ही नहीं है। सो दिस इज द यू कैन से थर्ड पॉइंट, दिस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर द इंटर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इट इज अ कलेक्शन। मशीन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो? मशीन मतलब आर्किटेक्चर। मशीन क्या बोलते हैं? जैसे आप बोलते हैं ना विंडोज की मशीन है ना, तो विंडोज मतलब कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर। जब भी हम मशीन की बात करते हैं ना, हार्डवेयर, तो हम हार्डवेयर का मतलब उसमें हार्डवेयर डिसाइड करता है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पड़ा हुआ है, राइट? आप अपने चाहो तो एक हार्डवेयर पे, आपको पता है, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज लिनक्स, यूनिक्स डाल सकते हो। आपको पता है किसी को एक सिस्टम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, यस और नो? Yes, you can है do ना? that. यस। तो इसका मतलब क्या होता है? मशीन तो एक क्या होता है? मशीन इज सिंपल वन थिंग। मशीन को जो ट्रीट किया जाता है, हाउ इज मशीन इज यू कैन से ट्रीटेड, हाउ कैन मशीन बी एक्सेस्ड, हाउ कैन मशीन बी रन, इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमें आजकल कभी जरूरत पड़ती है, क्या होता है कि हमें कुछ टेस्टिंग हमें करनी होती है, वी हैव टू परफॉर्म ऑन यूनिक्स, तो हम इसके लिए एक यूनिक मशीन नहीं खरीदते हैं, वी विल इंस्टॉल अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मशीन एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। हम उसी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे ही बोला ये गया है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर इंटरऑपरेबल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन का मतलब किसी भी हार्डवेयर की मशीन हो, उस पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो, डजंट मैटर, लेकिन ये वेब सर्विस क्या कर लेगी? इट विल मेक ए कम्युनिकेशन। इसका मतलब कल को कोई बंदा कोई भी एक ऐसी डिवाइस बनाता है जो मोबाइल नहीं है, जो डेस्कटॉप नहीं है, लेकिन उसके अंदर से कम्युनिकेशन जेसन एक्सएमएल के फॉर्म में होता है, तो दे कैन एक्सेस आवर एपीआई, यस और नो? है ना? तो इसी को तो स्मार्ट डिवाइस कहते हैं, कि आपकी कार में कोई भी डिवाइस लगाई और ये होता है। इफ यू गो टू द या सॉरी, एनीबॉडी वाज सेइंग एनीथिंग? No. चलिए नाउ third point is that it is a collection of standard or protocols for exchanging information between two device or application. अच्छा, this is the very very important point. यहाँ पे communication हो रहा है, मैंने I have given you the overview कि यहाँ पे XML हो रहा है, JSON हो रहा है, लेकिन जो data exchange का format है मैंने बता दिया। लेकिन चेंज करते वक्त, जब whenever you are exchanging the data from one device to another devices, तो आप जो डेटा का एक्सएमएल फॉर्मेट यूज कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ प्रोटोकॉल भी यूज करने पड़ते हैं। प्रोटोकॉल मतलब, डोंट बी वेरी वेरी पैनिक कि प्रदीप क्या प्रोटोकॉल की बात करें। प्रोटोकॉल का मतलब सिंपल, टेल मी, जब भी कोई आप एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो, आपने कभी ध्यान दिया हो आपकी एप्लीकेशन में ये यूआरएल में अपने आप ऐड होके क्यों आ जाता है? व्हाई इट कम्स टू द एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, अपने याद आता है ना? कोई भी इंटरनेट पे एप्लीकेशन आप एक्सेस करो, आप मुझे बता दो कि आप अपना एड्रेस बिना इसके लिख पाओ, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इन दोनों में से एक तो यूज करते ही हो, यस और नो?
इसको जानते क्या बोलते हैं, whenever you are developing any software, तो सॉफ्टवेयर से जो भी whatever communication you are trying to do, that is only happening with the help of some protocol. और ये HTTPS है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका मतलब है जब भी आप कोई कम्युनिकेशन एक मशीन से दूसरी मशीन या एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे करते हो तो आपको प्रोटोकॉल तो यूज करने हैं। तो वो यहीं पे दिस पॉइंट इट इज सेइंग दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइस। आपको डेटा तो दैट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल जेसन, लेकिन प्रोटोकॉल भी यूज करने। प्रोटोकॉल मतलब आपका एचटीटीपी के थ्रू आप कम्युनिकेशन करोगे। तो एचटीटीपी देयर आर सेवरल वेज टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी। थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एचटीटीपी प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि आप अपना डेटा दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट जब करते हैं तो कई सारे एस्पेक्ट आते हैं, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल आप जब कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है, सिक्योरिटी, ये एस्पेक्ट है कि नहीं है, यस और नो, है ना। तो आपको पता है whenever मैंने कल थोड़ा सा हिंट भी दी थी, जब आप whenever you are making a communication between two devices, अगर दो डिवाइसेस या दो सिस्टम के बीच आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस। अगर दोनों इंपॉर्टेंस है तो उस हिसाब से डेवलप किया जाता है, और जब आपकी सिक्योरिटी मैटर नहीं करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो वो डेवलप करते हैं, है ना। एक एग्जांपल भी देता हूं, एक सर्विस है आपकी आईसीआर सीटीसी में, एक सर्विस होती है टू गेट द डिटेल्स ऑफ योर सीट स्टेटस, पीएनआर नंबर का स्टेटस होती है, यस और नो। अब इस सर्विस में आपकी पता है क्या मैटर करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, आपकी सिक्योरिटी नहीं मैटर करती है। मान लो प्रियंका गॉट द टिकट और यू कैन से द टिकट नंबर ऑफ सुब्रमण्यम, तो सुब्रमण्यम की डिटेल अगर वो पता कर लेंगी तो ट्रैवल थोड़ा कर लेंगे वो प्रियंका की जगह पे, यस और नो। टिकट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वो केवल डिटेल ही तो पता कर सकते हैं कि प्रियंका की जो सीट है दैट इज कंफर्म फ्रॉम द वेटिंग टू कंफर्म हुई कि नहीं, यस और नो। तो कुछ सर्विस ऐसी होती है जो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं, उनको तो परफॉर्मेंस जरूरत है कि प्रियंका जब भी उसको एक्सेस करें तो अरे ठीक है वेटिंग, इट वाज इन द वेटिंग लिस्ट ऑफ 18, तुरंत 10 मिनट बाद करेंगे उसको, तुरंत रिस्पांस है ओह नाउ वेटिंग लिस्ट इज बिकम 10। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर करती है, यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है सिक्योरिटी, यस और नो। अब कुछ जगह सिक्योरिटी मैटर करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे आल्सो आपको पता है पेमेंट गेटवे क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे कभी कंपनी के अपने नहीं होते, सबको पता है। आप अपने सॉफ्टवेयर में जब पेमेंट करते हो तो पेमेंट गेटवे अलग से इंटीग्रेट करते हैं, हर करता है ना। आप देखो, आप नाउ डेज यू व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन आपको आता है कि देखो बोलता है ना इसमें व्हाट यू से, एक तो मैं भी भूल गया, बिल्डस करके एक है, राइट, दैट इज यूज्ड बाय, अब एक नया आया है रेजर पे करके, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट, लेकिन रेजर पे करके कुछ आया है। तो ये सब क्या है, एक्चुअली दे आर वर्किंग एज ए सर्विस। वो सर्विस क्या करती है कि आपके सिस्टम से जो आप अपनी पेमेंट कर रहे हो जो बैंक के थ्रू, उसके बीच में दे वर्क एज ए कम्युनिकेटर, यस और नो। ठीक है, अब यहाँ पे भी सर्विस है, लेकिन यहाँ पे सर्विस का परफॉर्मेंस का मैटर तो करता है, लेकिन परफॉर्मेंस से ज्यादा मैटर करता है सिक्योरिटी, यस और नो। आपको लगता है कि आपका पेमेंट यहां से सिक्योरिटी कैसे मैटर करता है कि आपने इफ यू मेड अ ट्रांजैक्शन, यू मेड अ पेमेंट फ्रॉम अमेजॉन, फ्रॉम दैट मिडल दैट यू कैन से पेमेंट गेटवे, तो आपका ये सिक्योर होना चाहिए कि अगर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है तब तो पैसे डिडक्ट हो, नहीं तो ना हो, और अगर डिडक्ट हो जाए तो बाय डिफॉल्ट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सर्विस दैट योर मनी शुड बी रिफंडेड ऑटोमेटिकली इन योर अकाउंट। और ऐसा ही होता है, आपको पता है, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं, यस और नो। बैंक इटसेल्फ प्रोवाइड यू, और हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट, बैंक को थोड़ा पता है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बैंक को तो एक चीज पता है, या तो आप पैसे निकालोगे और यू आर सबमिटेड, है ना। लेकिन वो सर्विस टेक केयर्स ऑफ दैट, पेमेंट गेटवे टेक केयर्स ऑफ दैट कि जिस पर्पस से आपने वहां पे उसका विड्रॉ या किया है वो कंप्लीट हुआ भी कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट सर्विस टू रिफंड बैक। यू नो दैट, आपके साथ हुआ भी होगा ऐसा, यस। ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ ये मैटर करता है। सेकंड थिंग इज दैट आप जब करते हो, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज द सॉफ्टवेयर सेज दैट डू नॉट रिफ्रेश योर ब्राउजर, है ना। क्यों बोलता है कि जब आपका कम्युनिकेशन वेब सर्विस से होता है तो इट एक्चुअली सेंड ए रिक्वेस्ट टू द बैंक, आपके यहां से आपकी एप्लीकेशन से वेब सर्विस कॉल होती है, वेब सर्विस से डेटा जाता है वो बैंक के व्हाटएवर दे इन टच। अगर आपने इसको बीच में सेशन को ब्रेक कर दिया तो कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं, वो दे कैन मेंटेन दैट कम्युनिकेशन, लेकिन क्यों नहीं करते हैं पता है, क्योंकि अगर आपने रिफ्रेश किया तो उनको दे ट्रीट इज एज अ हैकिंग, वो उसको क्या ट्रीट करते हैं, एज ए हैकिंग। उन्हें लगता है आपके कम्युनिकेशन के बीच में कोई और कम्युनिकेटर घुस गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
तो वो उसको मान लेते हैं हैकिंग, इसीलिए वो सेशन को करते हैं ब्रेक और आपसे बोलते हैं योर ट्रांजेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड। इसका मतलब ये नहीं है, कई जगह आप ये देखना, अगर हम सिक्योरिटी ना रखें ना तो वी कैन मेक ए सेशन, इसी को बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट, और हम ये काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट नो कि ये वही ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहा है जो इनिशिएट हुआ था, या किसी ने somebody has disturbed it, किसी ने एज ए इंट्रूडर, आपको पता है ट्रांजेक्शन को हैक कर लेते हैं लोग, यस और नो। तो ये ट्रैक करता है कि जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेम मशीन से हुआ है, प्लस सेम मशीन के साथ एक सेशन आईडी भी जनरेट होती है, जो आपकी मशीन में हर ट्रांजेक्शन क्या होती है, वेरी करती है। अगर आपके एक ट्रांजेक्शन में कहीं रिफ्रेश किया तो उसका वो सेशन का जो आईडी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको एक डाउट होता है कि हो सकता है some other person is trying to interfere in this transaction, तो उसको ब्रेक करता है। इसीलिए आपने देखा स्पेशली फॉर पेमेंट के टाइम पे वो मना करते हैं, वरना आप देखो मैं आपके सामने अमेजोन खोलूंगा, अमेजोन में तो देखो कितना पेमेंट के अलावा कभी आप सिंक करोगे, इन्होंने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। एक ब्राउजर ओपन हुआ है, लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करूंगा, आई एम गोइंग टू मोबाइल, है ना, मोबाइल में आपके सामने करूंगा, देखना कैसे सेशन इन्होंने बना के रखा है, क्योंकि इन्हें पता है कोई ऐड टू कार्ड करेगा क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, आई विल क्लिक ऑन दिस, मैंने क्लिक किया, ठीक है, आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल गो टू हियर, और यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ड करता हूँ। मैं ऐड टू कार्ड करूंगा, आप मुझे बताना मेरे कार्ड में व्हाट इज द काउंट इन माय अकाउंट। यह बोला है कार्ड में मेरे क्या दिख रहा है, आर यू एबल टू सी वन, दिख रहा है। अब मैं नया टैब खोल देता हूँ, ये देखो नया टैब खोला, अमेजोन डालता हूँ, ध्यान से देखना, नया टैब का मतलब क्या हुआ, इसका देयर शुड नॉट बी लिंक विद द प्रीवियस टैब, नया टैब मतलब, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो सेशन को क्या कर रहा है, बना के रखा, नया टैब में मेरा क्या दिख रहा है कार्ड में अभी, लेकिन अभी पेमेंट गेटवे में पेमेंट करते वक्त कभी ऐसे करके देखना, अगर आपने इसको लिया और नए टैब में खोल लिया, तो ऐसा नहीं कि वो ट्रांजेक्शन जो यहाँ चल रहा है वो यहाँ से भी चलता दिखेगा, इवन वो क्या करेगा ना, इट विल फाइंड दैट यू हैव ओपन्ड अनदर ब्राउजर ऑफ सेम एप्लीकेशन, वो कहेगा कि उसको गड़बड़ लगे, ही विल ब्रेक द सेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे why I'm telling you this thing कि जब आपका एप्लीकेशन डेवलप होता है सॉफ्टवेयर भी, ओके, so it is concerned with the traditional approach and it especially concerned with the web service also। तो वेब सर्विस को भी जब डेवलप किया जाता है तो ये भी देखा जाता है what is your need, on the basis of that you use different type of protocols। तो यहाँ पे XML JSON तो हो गया, other than you focus on the protocols। तो protocols यही होते हैं कि you use the ST प्रोटोकॉल। तो ST प्रोटोकॉल के अंदर आपके वेरिएंट होते हैं, आपने यू हैव हर्ड अबाउट दैट कि वी कैन सेंड अ गेट बेस्ड रिक्वेस्ट, पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट, पुट बेस्ड रिक्वेस्ट, अपडेट बेस्ड रिक्वेस्ट, डिलीट बेस्ड रिक्वेस्ट। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? तो यहाँ पे जब हम वेब सर्विस को डेवलप करते हैं तो हम वेब सर्विस में ये चीजें इंटीग्रेट करते हैं कि इस एप्लीकेशन को एक्सेस कैसे करेंगे। गेट बेस्ड एप्लीकेशन जो क्या होती है, वो क्या होती है, दे आर नॉट सिक्योर, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ी फास्ट होती है। पोस्ट बेस्ड जो वेब सर्विस होती है, दे आर लिटिल बिट सिक्योर, वो सिक्योर होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, गेट में डेटा इज विजिबल इन योर ब्राउजर यूआरएल। आप गेट में जब भी कोई कम्युनिकेशन करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ आई अवेलिंग अ लॉगिन सर्विस एंड इट इज डेवलप्ड एट गेट बेस, तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड आप पास करोगे ना लॉगिन के लिए, वो आपके यूआरएल में विजिबल होगा, तो सिक्योर हुआ नहीं। No. पोस्ट बेस्ड में अगर इफ एप्लीकेशन वेब सर्विस इज डेवलप्ड फॉर लॉगिन यूजिंग पोस्ट बेस्ड, तो आप यूजर एंड पासवर्ड जो डालोगे वो आपका यूआरएल में विजिबल नहीं होगा, वो एक हिडन पार्ट में जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी। उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट बने। तो देखो एक वट एवर आई टोल्ड यू हियर यू कैन सी अ पिक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हो वेब सर्विस क्या दिखा रहा है, डिफरेंट लैंग्वेज की भी कम्युनिकेशन दिखा रहा है ना, देखो जावा जावा .NET जावा, यहाँ पे तीनों लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक तरह की लैंग्वेज राइट में किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह इट कैन इंटरेक्ट, है ना। इसके बाद जब आता है वेब सर्विस को इन्होंने दे हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक होती है सोप बेस्ड और रेस्ट बेस्ड। और एक्चुअली ये सोप और रेस्ट बेस्ड का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सोप और रेस्ट। मैंने आपसे बोला ना कि वेब सर्विस का बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया कि XML को सपोर्ट कर सकता है, JSON को कर सकता है, ठीक है ये, और मैंने आपको बताया कि गेट बेस्ड होता है, पोस्ट बेस्ड। तो इस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फीचर्स दे हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना। उन्होंने दो कैटेगरी बना दी। जैसे एक कैटेगरी में बताइए क्या बन सकती है, एक कैटेगरी होती थी पुरानी कि पहले सर्विसेज ओनली सपोर्ट XML, मतलब सर्विसेज क्या करती थी, केवल XML कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती थी, JSON को नहीं करती थी। गेटिंग माय पॉइंट।
तो एक डिवीजन ये हो गया कि दो तरह की वेब सर्विस इन्होंने डिवाइड करी है, एक होती है सोप बेस्ड और रेक बेस्ड। और सोप और रेस्ट में पहला जो मेन डिफरेंस ये है कि इफ यू आर यूजिंग अवेलिंग द सोप बेस्ड वेब सर्विस, योर कम्युनिकेशन विल ओनली बी एक्सएमएल बेस्ड। लेकिन अगर आप रेस्टफुल यूज करोगे, यू आर फ्री, इट सपोर्ट बोथ, यू आर फ्री टू यूज एक्सएमएल as well as means RESTful services can be developed using the XML communication as well as JSON. लेकिन SOAP बेस में you are binded to use only XML। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मैं बताऊं, क्योंकि क्या होता है XML अभी भी XML when XML was developed it was very good at that time, लेकिन JSON का जो स्ट्रक्चर होता है it is more lightweight than the XML, तो उसकी परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी, JSON की, है ना। जितना भी आप नाउ इट इज, आप कोई भी एप्लीकेशन खोल के देख लो, आई एम श्योर दैट व्हेन यू गो एंड चेक द, मे बी लेट मी चेक हियर, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में देखो, यू कैन ओपन दिस डेवलपर टूल्स, इसको चाहे F12 से यू कैन ओपन इट, आप F12 से ओपन करके देखना। फिर यहाँ पे जब भी कोई लिंक करोगे तो यहाँ पे नेटवर्क, क्लिक ऑन नेटवर्क, और यू कैन डू वन थिंग, यहाँ पे ये आप फैक्सेस जारी करके देखो, तो यहाँ पे जो आपको ये दिखेगा इसमें, तो इसमें देखो ये आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट की हिट जाती है। यहाँ पे आप कभी देखना, जब मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि अगर आपको डेटा कहीं पे डेटा का यूज कर रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहीं जहाँ पे डेटा एक्चुअली यूज हो रहा हूँ, दे आर पासिंग द डेटा। वैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा, लेकिन आपको एक चीज दिख रही है, ब्रैकेट दिख रहे हैं, करली ब्रैकेट, ये सिंबल होते हैं कि इसमें अगर कोई डेटा जाएगा भी तो किसके फॉर्म में जाएगा, जेसन के फॉर्म। तो ये जेसन इज वेरी वेरी फास्ट। तो इसीलिए क्या हुआ था, सोप बेस्ड जो एपीआई इंप्लीमेंटेशन था दैट वाज ओल्ड। सोप का जो सोप बेस्ड एपीआई थी वो क्या था, ओल्ड इंप्लीमेंटेशन। इन द लेटेस्ट वन रेस्ट एपीआई आर यूज, क्योंकि रेस्ट में देखो जिसमें जितनी फ्रीडम उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है ना। तो रेस्ट में फर्स्ट बेनिफिट, इफ यू वांट टू यूज द एक्सएमएल आप XML यूज कर सकते हो, इफ यू वांट टू यूज द JSON यू कैन यूज। तो नाउ इट इज JSON वेरी पॉपुलर। तो ऐसे आप डिफरेंस देखने जाओगे तो बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे। जैसे देखो, वेब सर्विस यूज्ड XML एज डेटा डिस्क्रिप्शन एंड डेटा ट्रांसफर यूजिंग XML, ये तो आपको वेब सर्विस के फीचर दिए हैं, ठीक है, कि वेब सर्विस ये होती है। दूसरा आपकी इट इज लूजली कपल्ड, लूजली कपल्ड में जो मैंने आपको बताया है, तो यू विल डू वन थिंग, आई विल गिव यू दिस थिंग, यू कैन रीड इट। तो आपको इससे उसकी एक यू विल गेट अ ग्लिम्स कि वो not actually the glimpse, you will see कहाँ गया, ये देखो। तो इसमें whatever I told you, ये मैं आपको ये ग्राफ भी दूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल C, ये आपको मैं, let me provide you this graph on your chat, so you can do one thing whenever you are trying to get some understanding from this article, आप इसे relate करने की कोशिश करना, ठीक है। आप इसमें फिगर, तो आप then you will see the all points, XML loosely coupled, ठीक है, एबिलिटी टू बी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तो ये सब आप देखना। उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन आई विल टेल यू कि ऑल इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस यू कैन से द सेशन इज दैट हियर आई विल गिव यू अ लाइव वेब सर्विस दैट इज डेवलप्ड बाय मी, ठीक है। मैंने एक डेवलप, जैसे मैं आप लोग को देता हूँ ना अपनी वेब फॉर स्लिम लर्निंग, आई हैव डेवलप्ड अ एप्लीकेशन, ऐसे ही मैंने वेब सर्विस को भी डेवलप किया, एंड दैट इज प्योरली लाइव। मतलब मैं उसको एज ए वेब सर्विस मैंने कोड किया है, आई विल डिप्लॉय इन ए वेब सर्वर और आप उसे एक्सेस करोगे। बट द ओनली थिंग इज दैट मैं उसे डिप्लॉय करता हूं अपने सर्वर पे दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपको पता ना आप किसी एप्लीकेशन को कब एक्सेस करते हो, व्हेन इट इज होस्टेड ऑन अ इंटरनेट, यस और नो। लेकिन मैं उसे होस्ट कहां करूंगा, मैं अपनी मशीन पे करूंगा। तो आप मेरी मशीन को अगर एक्सेस कर सकते हो तो उसे कर लोगे, बट लिमिटेशन इज दैट जब मेरा मन नहीं हुआ मैंने तो शट डाउन कर दिया, आप तो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, यस और नो। सर्वर तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डू, आई विल मेक दिस होल कॉन्फ़िगरेशन इन योर सिस्टम आल्सो। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को, वेब सर्विस को अपने सिस्टम पे डिप्लॉय करोगे, एंड व्हेनेवर यू वांट टू यूज इट for your learning purpose, for understanding purpose, just start your web server। आपकी मशीन पे एक वेब सर्वर डालूंगा लाइट वेट, और उस पे आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना एंड यूज इट। इज इट ओके? तो हमारा काम, we will do it in the next session. So next session is very very important where I will show you, आपको मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है। For the time being I will give you मेरे पास, I will give you a link of Google Drive. Let me check, where is that one, let me check. हाँ, so I will provide you link of this API docs. यहाँ पे आपको करना क्या है,
all the resources which is available here. यहाँ पे मैं आपका पूरा I will try to create a setup, live setup on your machine कि आपको feel आएगा कि what is, क्योंकि what is happening in case of web application, सबको पता है web application क्या होती है, कैसे काम करती है, एक ब्राउजर पे होती है, Amazon ले लो, लेकिन web service actually people do not know कि कैसे काम करती है, कैसे वो interact करती है. So here I will configure all things and it is very well lightweight, don't worry about that. So I have created all the flavors. ये are you able to see student web application? ये SOAP based application है, ये REST based XML support है. प्रदीप JSON, it is REST API with JSON support. इसके साथ I will provide you the crack version. I will provide you SOAP UI. What do you say? I will provide you a SOAP UI tool to test it. You can say test it manually, and UI based automation. SQL you can use it for your database purpose. ये sample text है, sample JSON format जो हमारी API में use होंगे. NetBeans. So everything you have to download on your machine. Is it okay? Only download. Don't install it. Is it okay? So next session में I will do one thing. I will show you this configuration. It is not mandatory. If you want to use my web services for your learning purpose, you can do it. अगर आपको नहीं करना है, you have own services, you can go with that. But I will advise you, you can download and set up on your machine. आपको इससे फायदा क्या होगा? You will get an opportunity to see the internal code of API. आपको ये भी देखने को मिलेगा कि what is the difference in terms of coding? What is the difference between the web application and web service? कैसे जावा का कोड से web application भी बन जाती है, and how it is treated as a web service. It is not going to give you so much you can say benefit in terms of your QA profile, but in terms of understanding the web service concept. आप जब understanding, when you try to get some understanding, it will benefit. How you will get? आपको पता चलेगा कि अंदर जब when you send some request, जो request का XML JSON data होता है वो अंदर कैसे treat होता है, उसको कैसे accept करता है, कैसे वो support करता है. Are you getting my point? Yeah. So I will advise you can do it. तो second session में हम क्या करेंगे? Next session, the first Saturday, first day of the next session, हम इसको configure करेंगे, and second session I will start showing you the manual testing part of API in SOAP UI. After that, we will cover the automation part in SOAP UI, and then we'll proceed to the rest session. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. Until the time you have a good opportunity that if you want to explore from your side anything web service API and you come with doubts, Pradeep, still I have a doubt that what still I'm not clear on this point, you can ask me. We will discuss that. Is it okay? Yes, sir. Okay. Anybody want to ask anything till now? You can ask me. Otherwise, we will discuss in the next session. Everybody is good? Yeah. Yeah. Okay. Then thank you. Have a nice day. Thank you, Priyanka. Thank you, Subramaniam, Rubina, Akansha, and Soumya. Thank you. Thank Okay. you. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye. Have a nice day.